Hi everyone, my name is Priyambada and welcome to World Student School. Today in this session, we are going to start with chapter 2 of class 10th, that is acid, bases and salts. I believe सभी ने acids, bases and salts का नाम तो सुना होगा, alright? And some of you might also know the properties कि acids, bases and salts की properties क्या होती है. So in this chapter basically, we are going to cover those properties in a little more detail with a lot of experimentation obviously. क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे then only you will be able to understand the basics of this chapter and you'll boost your knowledge. So let us now start with the chapter. Now let us begin with what all do we know. Since हमने ये टॉपिक्स पहले भी सुने हैं, पहले भी इनके बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका है. So let us now study first कि हमें क्या क्या पता है. What all do we know? So let us now see that the sour and the bitter taste of food are due to acids and bases present in them. So sour means क्या? Sour means जो खट्टा टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है it is because of the acids. And अगर आप बात करो कड़वा टेस्ट, bitter taste, it is because of the bases present in the food. So this we know that sour is for acid and bitter is for the bases. Alright. So now let us begin with the next point. क्या है next point? Acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. Alright. अब देखो acids जो हैं वो कैसे होते हैं? They are sour in taste. Alright. So यहाँ पे मैं acids लिख देती हूँ. ये sour होते हैं taste में and हमें क्या पता है that जब litmus paper acids में हम डालते हैं so they turn blue litmus to red. So हमें ये याद कैसे रहेगा? How we are able to remember this? Now acids की अगर बात करें तो बेटा acids में क्या आता है? A. Alright. A के बाद क्या आता है? Blue. A के बाद आता है B तो हमारे पास आ जाएगा blue. Blue to red. And इसी का opposite होता है बेटा bases. इसी का opposite होता है bases. So it means कि अगर हम bases की बात कर रहे हैं तो opposites of acid कि वो blue to red convert करता है, it will convert into red to blue. Red to blue conversion होएगी litmus paper की in case of the bases. Are we clear? So एक बार हम इस image के through examples देख लेते हैं कि acids and bases कौन कौन से हैं. तो first we will see the acids. So acetic acid is the acid and citric acid is the example of an acid. But अगर आप देखो बेटा तो ये भी खाने की चीज है एंड ये भी खाने की चीज है. नाउ यू माइट वंडर कि अगर ये एसिड है तो हाउ कैन वी ईट दैट? हम ये एसिड खा कैसे सकते हैं? ऑलराइट. सो इसके बारे में भी जो केमिकल डिस्कशन दैट विल डू इन फर्दर इन दिस चैप्टर. बट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि अगर कोई एक एसिड आप खा सकते हो तो दैट मीन्स दैट एसिड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. Yes, in case of strong acids, you won't be able to consume them. But अगर हम बात करें weaker acids की, so obviously your body can take that. So उसमें हम बात करते हैं बेटा विनेगर की. विनेगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? विनेगर is called as सिरका in हिंदी. And सिरका आपको पता है विनेगर is used in many food items. तो that is eatable. Second, we talk about the citric acid. And citric acid is present in case of lemon. कहाँ present होता है citric acid? लेमन में प्रेजेंट होता है. एंड यू नो दैट वी हैव लेमन, हम सैलड के साथ खाते हैं. वी पुट फॉर दिस टेस्ट के लिए हम बहुत सारे डिशेस में भी ऐड सिट्रिक. यस, सो वो होता है प्रेजेंट लेमन में. ऑलराइट. सो ये बात आ गई बेटा एसिड्स की. एंड वन मोर थिंग, वेन एवर यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री, कोई भी टॉपिक अगर आप कवर कर रहे हो एंड इफ यू हैव केमिकल फॉर्मूलाज एंड अलॉन्ग विद देम यू हैव कॉमन नेम्स, तो यू शुड लर्न बोथ ऑफ देम. क्योंकि आपको क्वेश्चन या तो विनेगर के नाम से आ सकता है, आइदर द क्वेश्चन कैन कम विद द नेम ऑफ एसिटिक एसिड. तो आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड, विनेगर, हम किसकी बात कर रहे हैं. ऑलराइट. सो दिस इज वन थिंग. नाउ वी टॉक अबाउट द सिट्रिक एसिड. बेटा सेम थिंग, ये पता होना चाहिए दैट लेमन में होता है सिट्रिक एसिड एंड दीज टू एसिड्स आर ईटेबल, एडिबल. गॉट दैट? Now let us begin with the bases. Bases के एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा. तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आपको दिख रहा है सामने बेकिंग सोडा का. बेकिंग सोडा बेटा, बेकिंग से आपको क्या समझ में आता है? बेकिंग सोडा कहां यूज हो सकता है?
So baking soda can be used in making cakes, pakoras, yes. So कुछ food items में can be used to prepare delicious food items, right? तो वो बात होगी बेटा बेकिंग सोडा की. अब बात कर लेते हैं इसके केमिकल नेम की. केमिकल नेम क्या हो गया इसका बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट. The name of baking soda is sodium bicarbonate, and as I have told you, you must remember the chemical name for baking soda. It is very very important. तो baking soda के लिए हम क्या बोल देते हैं बेटा? It is called as sodium bicarbonate. Now next you talk about ammonia. Ammonia क्या है बेटा? Ammonia hydroxide or ammonia water. It also has various uses that you will cover in later in this chapter. All right? So आगे बढ़े बेटा. Now let us move forward. इतनी बात हमें पता लग गई. अब आगे देख लेते हैं. So now litmus solution is a purple dye. अब बात कर लेते हैं बेटा litmus solution की. I hope बहुत लोगों में आप में से सुना होगा that what exactly is litmus solution. So basically let me tell you that litmus solution एक ऐसा solution होता है जिससे you can determine if you have a compound or a liquid whether it is acid or a base. So ये आपको समझ में आता है one of the methods that is through the litmus solution कि कोई solution आकर आपको determine करना है whether it is an acid or it is a base. Get it? All right. So which is extracted from lichens. अब ये होता है extract lichen से. Now lichens are the plants. ये lichens plants होते हैं, ठीक है? ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि source क्या है lichen. अब lichen में क्या है आपको दिख रहा? L. And litmus में भी what do you get? L. So L for what? L for this lichen and L for litmus. So the source of producing litmus solution are the lichens, that is the plant. Now when the litmus solution is neither acidic or basic, its color is purple. So what we know is कि अगर आप लिटमस सॉल्यूशन को उसके अपने न्यूट्रल फॉर्म में देखोगे तो वो आपको पर्पल नजर आएगा. आर वी क्लियर? बट अगर आप उसमें एसिड या फिर बेस डालोगे देन द कलर विल चेंज, एल्स द लिटमस सॉल्यूशन विल रिमेन पर्पल. आर वी क्लियर? तो वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स दैट वी गेट फ्रॉम लाइकन्स एंड अनदर वन लेट अस टॉक अबाउट दैट सम फ्लावर्स. You won't believe that some flowers are also considered as the natural indicators of acids and bases. So some flowers such as hydrangea, petunia and geranium, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा बेटा. hydrangea हो गया, petunia हो गया, geranium हो गया. All these are the names of the flowers and these indicate the presence of acid or base in a solution. ये क्या करते हैं? They determine that if a solution is acidic or basic. So all these are considered as the natural indicators to confirm the solution is acidic or basic. So हमारे पास images भी हैं बेटा जो हम indicators की बात कर रहे हैं. This one is the litmus. This is the litmus paper through which you will know that if this particular solution is acid or base. Second we have turmeric. Turmeric is also हल्दी जिसको हम बोलते हैं. So हल्दी के help से भी we can determine if the solution is acidic or basic. Third we have China rose and China rose does the same thing as other these two indicators. All right. Now let us begin with the chapter finally. अभी तक हम कर रहे थे introduction and what all do we know. So उतनी बातें हमने discuss कर ली थी. Now let us find out what exactly this chapter holds. So first topic is understanding the chemical properties of acids and bases. Acids and bases आपको पता है जैसे आप देखते हो नाम भी लिखा होता है. On some bottles you might see hydrochloric acid, on some bottle you might see sodium hydroxide. So ये बेटा examples हैं, these are the names of acids and bases. But अब हमें इस chapter में समझना है कि why we call acid an acid and why do we call base a base, कि क्यों हम बोलते हैं. So that we will know after we determine or after we understand the chemical properties of acids and bases. So for that, we will first start with the activity 2.1. And before starting this activity, I would like to tell you one thing, that you shouldn't avoid activities in any chapter of your
केमिस्ट्री या फिर आपको कहीं भी दिया हो, पूरे साइंस में wherever you find activity, do not skip it. Why? The reason being कि जब आपको एग्जाम्स में, बोर्ड्स में एंड इन एनी अदर एग्जामिनेशंस आपको जो क्वेश्चंस आएंगे बेटा, वो आपको रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएंगे. आपको इसी एक्टिविटी के थ्रू भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड अगर आपको एक्टिविटीज का प्रोसीजर से लेके if you have the knowledge of the experimentation, then you will be able to answer that question. So yes, learning and understanding the activity is equally important as you learn the definitions and other theoretical contexts, right? So let us now begin with the procedure first. Now collect the following solutions from the science laboratories. So they are asking us to collect the solutions. So we have various solutions in front of you. First one is hydrochloric acid, that is read as HCl, या फिर हम बोलेंगे उसका फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है HCl. Second we have sulfuric acid and the formula of sulfuric acid is H2SO4. Third we have nitric acid and the formula of nitric acid is HNO3. But अब आप ये समझो बेटा, that जो आप नाम याद रख रहे हो, कोई भी नाम हो solution का, whether it is acid, whether it is base, formulas are very very important. Please understand this. ठीक है, formulas याद होने ही चाहिए, ये मैंडेटरी है whenever you are studying chemistry, right? फिर आता है एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का क्या है? CH3COOH. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है CaOH ट्वाइस. इसको CaOH2 नहीं कोई बोलेगा, इट इज CaOH ट्वाइस. ऑलराइट. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अगेन MgOH twice. एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. तो ये जो हमने पढ़े हैं सॉल्यूशंस के नाम, we are taking this as a sample in this activity. All right. Now let us move forward. All right. So put a drop of each of the above solutions on a watch glass. सभी सॉल्यूशंस को एक एक करके आपने वॉच ग्लास में डालना है. ड्रॉप एक बार इस सॉल्यूशन का डाला, एक बार एसिड का डाला, एक बार बेस का डाला. ऑल राइट. एंड टेस्ट विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स शोन इन टेबल 2.1. सो दिस इज टेबल 2.1 एंड इस टेबल में आपको वेरियस इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे. पहला तो आपका सैंपल सॉल्यूशन है, जो भी आप सैंपल सॉल्यूशन ले रहे हो. सेकेंड वी हैव इंडिकेटर्स एज रेड लिटमस सॉल्यूशन. Second we have blue litmus solution. Third we have phenolphthalein solution, and fourth we have methyl orange solution. So all these solutions are basically the indicators that will determine whether your solution is acid or a base with the solutions that we have taken in this activity. So now they are asking, what change in color did you observe with the red litmus, blue litmus, phenolphthalein and methyl orange solutions for each of the solutions taken? आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखती है? tabulate your observation in 2.1. So let's suppose मैंने पहला सॉल्यूशन लिया है एसिड. फर्स्ट सॉल्यूशन आई हैव टेकन एज एसिड. तो अगर यहां पे मैं रेड लिटमस सॉल्यूशन डालूं तो आपको याद होगा कि एसिड के लिए हमने कैसे इसको याद किया था? दैट इट विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड. याद है? क्योंकि ए के बाद क्या आता है? बी. एंड अगर आप बेस की बात करते हो बेटा, इफ यू टेक अ बेस, जस्ट अ सेकेंड, इफ यू टेक अ बेस तो आपका क्या आएगा बेटा? इट विल कम एज रेड टू ब्लू. रेड टू ब्लू. क्लियर? अब देखो यहां पे फर्स्ट सॉल्यूशन, लेट्स सपोज आई हैव टेकन द एसिड. तो अगर मैं इसको रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालूं, सो ये तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि इट इज ऑलरेडी कन्वर्टिंग इनटू रेड. सो इट शुड नॉट शो एनी इफेक्ट. सो यहां पे मैं लिख देती हूं नो इफेक्ट. नो इफेक्ट. क्लियर? यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आता इसका. सेकेंड आपने बात की बेटा, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, हाँ जी, नो इफेक्ट आ गया. फिर उसके बाद आता है आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. अगर आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू.
इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू. गॉट इट? अगर आप फिनोल्फथलीन सोल्यूशन के साथ एसिड ट्रीट करते हो तो इट विल रिमेन कलरलेस. ये आपको याद रखना पड़ेगा. इट विल रिमेन कलरलेस, and if you're treating it with the methyl orange solution, then the color of acid will become red. फिर कलर एसिड का हो जाता है रेड. ये आपको याद रखना है. ठीक है. सेकेंड, लेट्स सपोज आई टेक द सोल्यूशन बेस. मैं बेस ले लेती हूँ, कोई भी बेस ले सकती हूँ. एसिड आई कैन टेक HCl, बेस आई कैन टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो लेट्स सपोज मैंने बेस ले लिया. तो बेस में बेटा रेड लिटमस सोल्यूशन है. अब आपको पता है ये रेड टू ब्लू करता है. ठीक है. तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, यहां पे चेंज आ जाएगा ब्लू, राइट. एंड यहां पे आएगा, क्योंकि वो ब्लू में ही कन्वर्ट हो रहा है, तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट. बट जब आपको इसको फिनोल्फथलीन के साथ आप ट्रीट करोगे, देन द कलर ऑफ बेस विल बिकम पिंक. इट विल बिकम पिंक इन कलर. And if you are treating it with the methyl orange solution, then this will become yellow. फिर क्या कलर आ जाता है इसका? येलो कलर आ जाता है. Clear? So all these things happen when you treat an acid or a base with these types of solutions. तो एक बार बेटा अब इसकी explanation and observation let us see now. So observation says बेटा, stronger acids like hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acids are very acidic, have very acidic pH. बहुत इनका acidic pH होता है. तो मैं एक बार आपको ना strong acids बता देती हूँ कौन कौन से हैं इसमें. strong acids ये आपको पता होने चाहिए, नाम आपको याद होना चाहिए कि strong acids कौन कौन से हैं. ठीक है. फर्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा HCl. HCl is hydrochloric acid. सेकेंड आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. थर्ड वी हैव नाइट्रिक एसिड, दैट इज HNO3. नाउ दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एंड दे हैव हाई pH वैल्यू, हाई pH वैल्यू. ठीक है. सबके बारे में कि ऐसा क्यों है एंड व्हाट इट एक्चुअली डिटरमाइंस, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है. अब मैं आपको बता देती हूँ बेटा स्ट्रॉन्ग बेसिस. बट बिफोर दैट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स के पास हाई pH होता है एंड व्हाट एल्स दे डू. सो इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड एंड गिव्स अ रेड सॉल्यूशन विद मिथाइल ऑरेंज एज वी हैव सीन इन द ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट ऑल वी नो कि एसिड्स में क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड दे कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, एंड विद दे गिव रेड कलर. रेड कलर किसके साथ देते हैं? मिथाइल ऑरेंज के साथ, एज वी हैव डन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल. मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ कौन सा कलर देंगे? दे विल गिव द रेड कलर. बात क्लियर हो गई? अब आगे देख लेते हैं बेटा. मूविंग फर्दर, सिमिलरली स्ट्रॉन्गर बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, potassium hydroxide, magnesium hydroxide and ammonium hydroxide turns red litmus into blue. हमने पढ़ा था अगर मैं लिखूं stronger base, strong bases, I would rather round strong bases, तो हमारे पास strong bases कौन कौन से हैं बेटा? We have strong bases like sodium hydroxide, that is NaOH. उसके अलावा we have calcium hydroxide, that is CaOH twice. Then we have potassium hydroxide, KOH. हमारे पास potassium hydroxide है. Then we have magnesium hydroxide, that is MgOH twice. MgOH twice आ गया हमारे पास magnesium hydroxide. फिर है हमारे पास ammonium hydroxide, that is NH4OH. NH4OH. Now all these strong bases they will convert क्या? रेड लिटमस टू ब्लू. ये किसका अपोजिट है? एसिड्स का. रेड टू ब्लू. यस. और हमने क्या देखा था बेटा ऑब्जर्वेशन टेबल में? व्हाट एल्स डिड वी सी इन द ऑब्जर्वेशन टेबल? दैट विद फिनोल्फथलीन they give a pink solution
and with methyl orange they give a yellow solution. फिनोफ्थिलीन के साथ, ये फिनोफ्थिलीन है बेटा, फिनोफ्थिलीन है, इसके साथ पिंक कलर देते हैं, they will give pink color with it, and मिथाइल ऑरेंज के साथ, see here, मिथाइल ऑरेंज के साथ they give which color? They give yellow color. ये बेसिक बेटा रेफरेंस है कलर्स का जो आपको याद होना चाहिए. इस रेफरेंस के थ्रू आपको काफी क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व. सो ये चीजें आपको याद रखनी है. अब कंक्लूजन देख लेते हैं. लेट अस रीड अबाउट द कंक्लूजन नाउ. दैट डिफरेंट pH indicators give different color with the acids and bases. See, that is a common sense. Why? क्योंकि बेस की कॉम्पोजिशन की आप बात करो, if you talk about the whole solution, then obviously they differ in their compositions. And since every acid and base has a different composition, so it's very clear that they will have a different pH. So that is the reason कि pH indicator से अगर आप किसी भी solution को आप determine करना चाहते हो, तो you will get a different pH altogether. Clear? Now, an acid turns the blue litmus paper red, while a base reverses this. As I have already told you कि acid convert करता है blue to red and base उस चीज को reverse कर देता है. It will convert red to blue. Now, bases give pink color with phenolphthalein, that is one thing, while with methyl orange it gives a yellow solution. अगर आप bases की बात करो, bases हमेशा phenolphthalein के साथ pink color देते हैं and with the methyl orange indicators they give you yellow color. Alright? Similarly, acids give red color with methyl orange. And acid कौन सा color देते हैं? They give red color with the methyl orange. But phenolphthalein के साथ हमने देखा था that they were colorless. All right. Now, let us talk about one fact. Fact is, there are some substances whose color changes in acidic or basic media. Why, right? क्या है? Sorry, odor, not color. There are some substances whose odor, खुशबू की बात कर रहे हैं, that changes in acidic or basic media. कि अगर आपने कोई substance लिया है and if you are putting it either into an acidic solution or you are putting it into the basic solution, so उनकी खुशबू change हो जाती है. They change their odor or they do not change. दोनों केसेस हो सकते हैं, या तो उनका ऑर्डर चेंज होगा, खुशबू चेंज होगी, और इट विल नॉट चेंज. राइट? सो दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिससे आपको खुशबू से आपको पता लगता है कि ये एसिड कन्वर्ट हुआ है या नहीं और ये बेस कन्वर्ट हुआ है या नहीं. उनको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. एंड टू डिटरमाइन द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वी हैव अनदर एक्टिविटी, that is activity 2.2, and as before let us start with the procedure. So take some finely chopped onions in a plastic bag along with some strips of clean cloth. Onion लिया आपने, onion you finely chop the onion and then you put it in a plastic bag. And जिस plastic bag में आप onion डाल रहे हो, there you have to put 2 strips of clean cloth. बिल्कुल clean cloth आपने onion के साथ डालना है. All right? Next है, tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. क्या करना है आपने? वो बैग then you have to put it in a fridge and you इससे आपको क्या समझ में आएगा? that what will happen to the clothes? कि जो आपने strip of cloth आपने onion के साथ रखा है in the fridge overnight, what will happen to that cloth? So you must understand कि अगर onion की कोई भी odor है, onion की odor सबको पता है, onion की खुशबू कैसी होती है सबको पता है. सो अनियन का जो ऑर्डर है दैट विल कम ऑन दैट क्लीन क्लोथ. आ सकता है, ठीक है? सो द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस. सिंपल. तो जो अब आपके पास क्लोथ का स्ट्रिप आया है, फ्रॉम दैट यू कैन डिटरमाइन कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस से जो आपको डिटरमाइन करने हैं जो भी चीजें, इंडिकेटर्स, दैट यू कैन डिटरमाइन. व्हाई? बिकॉज अनियन की जो भी खुशबू या अनियन का जो भी सब्सटेंस है that has now come on the clean clothes. Clear? Now take 2 of these cloth strips and check their odor. जब आपने उसको एसिड एंड बेस के साथ ट्रीट किया, then you will
चेक इट्स ओडर, फिर आप उसके ओडर देखोगे कि इफ द ओडर चेंजेस और नॉट, एंड अगर चेंज आया है तो किस तरीके का चेंज आया है. ऑलराइट, नाउ कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH ऑन द अदर. तो लेट्स सपोज ये हमारे पास दो स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ्स हैं. दिस इज क्लोथ नंबर 1 एंड दिस इज क्लोथ नंबर 2. अब इन दोनों पे ही बेटा क्या है, अनियन लगा हुआ है. अनियन है इन पे, ठीक है. अनियंस एक्सट्रैक्ट इज देयर ऑन दीज क्लोथ्स, ठीक है. नाउ ऑन फर्स्ट क्लोथ आई विल पुट डाइल्यूट HCl. पहले क्लोथ पे मैंने डाइल्यूट HCl डाल दिया एंड सेकेंड पे मैंने डाइल्यूट NaOH डाल दिया. NaOH. नाउ दिस इज एन एसिड, ये समझो डाइल्यूट HCl एसिड है एंड दिस वन डाइल्यूट NaOH इज अ बेस. ये हो गया आपका बेस. क्लियर. अब इसके थ्रू आपको डिटरमाइन करना है खुशबू कि इन दोनों क्लोथ्स में क्या खुशबू रहेगी एंड हाउ दिस ओडर इज चेंजिंग. क्लियर. उसके बाद क्या करना है, रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ओडर. पानी से आपने क्या किया, दोबारा उसको वॉश किया. नाउ अगेन you'll have to smell the odor कि उसमें से ओडर अब कैसी आ रही है आफ्टर वॉशिंग इट विद द वाटर. नाउ नोट योर ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्वेशन आपने नोट कर ली. नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड अ क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ओडर. फर्स्ट थिंग आपने क्या लिया, क्लोथ लिया, उसके साथ आपने एसिड बेस रिएक्ट करवाया, देन यू रिंस इट विद द वाटर एंड देन यू अगेन चेक इट. अब आपने क्या लेना है, अब आपने दो चीजें और लेनी है. फर्स्ट यू हैव टू टेक द वनीला एसेंस, सेकेंड आपको क्लोव ऑयल लेना है. अब आपको पता है कि क्लोव ऑयल में भी खुशबू होती है, वनीला एसेंस में भी आपकी खुशबू होती है, प्लेजेंट स्मेल, राइट. नाउ टेक सम डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन दी अनदर. आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl ले लिया एंड दूसरे ट्यूब में आपने डाइल्यूट NaOH ले लिया, राइट. उसके बाद what we have to do, we have to add a few drops of dilute vanilla essence to both the test tubes and shake well. एक बार आपने let's suppose इसमें हमारे पास dilute HCl है and we have dilute NaOH in this hand. तो आप एक बार वनीला एक्सट्रैक्ट HCl वाले में डालोगे ट्यूब में एंड अगेन आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस डालोगे NaOH वाले ट्यूब में एंड देन यू हैव टू शेक वेल दोनों ट्यूब्स को, राइट. चेक द ओडर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड द चेंजेस इन ओडर इफ एनी. अब आपने खुशबू देखनी है, खुशबू डिटरमाइन करनी है कि इफ द ओडर रिमेन्स इन एनी टेस्ट ट्यूब और इट चेंजेस, कि किसी में रह गई है या चेंज हो गई है. ऑलराइट. Similarly, test the change in the odor of clove oil with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observations. Similar thing you have to do with the clove oil कि आपने HCl वाले ट्यूब में भी थोड़ा सा क्लोव ऑयल डाल दिया है एंड NaOH वाले ट्यूब में भी आपने थोड़ा सा क्लोव ऑयल डाल दिया है एंड देन यू हैव टू चेक द ओडर इफ इट चेंजेस. तो आगे देखते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं हम. तो ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है हमारी, that bases deodorize onion and vanilla but do not change the color. एसिड की बात नहीं हो रही है क्योंकि एसिड ओडर चेंज नहीं करते. एसिड्स, जो एसिड्स हैं बेटा, एसिड्स डू नॉट deodorize the vanilla and clove oil. समझ आ गया. बट बेसिस डिओडराइज कर देते हैं बेटा, बेसिस डिओडराइज कर देते हैं. डिओडराइज करने का मतलब क्या होता है कि ओडर हटा देना, खुशबू हटा देना. तो ये बेसिस का काम है कि बेसिस डिओडराइज करते हैं एंड इस वजह से आपको जो खुशबू पहले आ रही थी तो खुशबू नहीं आएगी. तो एक बार अब ये टेबल देख लो बेटा, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं. कैसे, आपने लिया है अनियन लिया है फर्स्ट, सेकंड आपने लिया है वनीला एक्सट्रैक्ट,
थर्ड आपने बात की थी क्लोव ऑयल की, तो ये हमने ले लिया बेटा क्लोव ऑयल, ठीक है। अब इसको अगर आप एसिड्स के साथ करते हो, अनियन को एसिड के साथ आपने किया तो स्मेल रिमेन्स, स्मेल रहेगी। क्यों? क्योंकि एसिड्स ने डिओडराइज नहीं किया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बेसिस देन इट विल लूज इट्स स्मेल। यहां पे इसने अपना काम कर दिया, इट डिओडराइज द स्मेल ऑफ अनियन। सेकेंड यू टॉक अबाउट द वनीला एक्सट्रैक्ट, तो इट रिमेन्स स्मेल। एंड सेकेंड अगर आप उसको बेस के साथ करोगे तो इट लूजेज इट्स स्मेल। थर्ड सेम अगेन, क्लोव ऑयल के साथ भी इट विल रिमेन स्मेल एंड लूजेज इट्स स्मेल व्हेन इट रिएक्ट्स विद द बेस। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आया बेटा, दैट बेसिस दे एक्चुअली डिओडराइज्ड और डिओडराइज द ओडर ऑफ आइदर यू टेक द अनियन, वनीला एक्सट्रैक्ट और व्हाटएवर, राइट? आगे देखो, सो we have a very good explanation of why it happens. So onion contains sulfurous allium. ये जो बेटा substance है sulfurous allium, this substance is responsible for that pungent odor that comes from onion. कि onion से आपको बहुत pungent odor आता है and उसका एकमात्र reason है that is sulfurous allium, presence of sulfurous allium in onion. It gives the peculiar onion odor, as we have discussed. It is acidic and reacts with bases like sodium hydroxide to give the odorless compound. समझो कि हुआ क्या है, कि odor क्यों चला गया, onion का odor क्यों चला गया the moment you reacted it with the base. It happened because sulfurous allium is an acid. Its nature is acidic. And when you will react it with the base, that is sodium hydroxide is a base. ये base है बेटा, this is a base. And जब आप इसको react करोगे तो acid plus base मिलके क्या बना दिया, odor हटा दिया. It means there was some reaction that took place. Acid plus base का कोई reaction हुआ and the solution or the essence that was earlier there, the odor which was earlier there, now it has become odorless because of the acid base reaction. Because of the acid base reaction, understand this. यहां लिख रही हूं देखो, acid plus base, acid plus base, olfactory indicators की बात कर रहे हो बेटा, odorless, odorless कर दिया है, odorless, alright, odorless बना दिया है substance को. Clear? So when we add bases to onion soaked cloth, its smell disappears. Same happens with the cloth. Cloth के साथ आपने किया, then also the smell disappears, right? So allium does not react with acids. So when we add acids to onion soaked cloth, smell remains in the cloth. अब क्या होता है बेटा, एलियम को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करो तो एलियम भी एसिड है और एसिड तो एसिड है ही, तो एसिड प्लस एसिड करोगे तो कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं एंड इस वजह से स्मेल भी चेंज नहीं हुई, राइट? बट इन केस ऑफ अनियन इट हैज चेंज्ड, राइट? आगे देखते हैं, वनीला देखो. अब वनीला कंटेन्स एन एल्डिहाइड विच गिव्स इट अ प्लेजेंट ओडर. तो ये जो एल्डिहाइड है बेटा, एल्डिहाइड के बारे में यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. अभी सिर्फ आपने नाम याद रखना है दैट वनीला के अंदर क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेजेंट ओडर ऑफ द वनीला. जो आपको प्लेजेंट अच्छी खुशबू आती है वनीला से, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड. ऑलराइट, सो द एल्डिहाइड इज ऑल्सो अ वीक एसिड. ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि वनीला तो आप खा भी सकते हो, वनीला की आप खुशबू भी ले सकते हो. यस, तो वनीला की अगर आप खुशबू भी ले सकते हो विदाउट गेटिंग योर नोज इरिटेटेड, एंड इफ यू कैन ईट इट विदाउट गेटिंग योर स्टमक डिस्ट्रॉयड, सो इट मीन्स दैट इट इज अ वीक एसिड. सो इट इज अ वीक एसिड बट इट इज एन एसिड. दे रिएक्ट विद द बेसिस एंड द स्मेल डिसअपियर्स. सेम थिंग, एल्डिहाइड जो प्रेजेंट है दैट इज ऑल्सो अ वीक एसिड, एंड if it will react with the base, then the odor disappears. Similar to onion, vanilla color also has no relation with bases and acids,
As a result, we do not see any changes in the color of vanilla with acids or bases. अब इसका बेटा कलर से तो कोई लेना देना नहीं है, आर वी क्लियर? तो इस वजह से आपको कलर में कोई चेंज नहीं दिख रहा है. Only you will be able to see or you will be able to smell if there is a odor that remains or if it disappears. All right? Now, next topic पे आते हैं बेटा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स. अभी तक आपने देखा कि एसिड्स एंड बेसिस जब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के साथ आपने देखा एंड वी सॉ देम विद वेरियस अदर इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स के साथ देख लिया हमने, एंड वी सॉ देम विद द ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज. उसके अलावा वी सॉ कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में वो कैसे अपना स्मेल चेंज करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद द एसिड्स एंड बेसिस. अब हम देखेंगे कि जब एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ, मेटल्स कौन कौन से होते हैं? मेटल्स विच आर स्ट्रॉन्ग, metals which are shiny, metals which create sound, which are sonorous. So उन्हीं को बेटा metals बोलते हैं. Let's suppose I have this ring. ये ring है मेरे पास and this ring अगर let's suppose ये मेरे हाथों से गिर गई, so obviously there will be a audible sound that will come when it will fall on the ground. Whereas this ring is quite shiny and plus also it is solid, so we can say that it is a metal. It is a metal. तो ऐसे ही metal के साथ when we will react acids and bases, then what will happen? So let us now begin with the activity understanding this procedure. So the first thing we are going to understand is the caution. Since we are dealing with acids and bases, and obviously they are quite harmful for the body because they can destroy the skin. So the caution is very, very important if you are doing it under the teacher's assistance, right? So set the apparatus. That I'll tell you what kind of apparatus you have to set. So set the apparatus is the first thing and take about 5 ml of dilute sulfuric acid. 5 ml of dilute sulfuric acid is H2SO4. Dilute sulfuric acid in a test tube. आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया एंड एड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट. यहां पे मेटल कौन सा है बेटा? द मेटल वी आर टॉकिंग अबाउट इज जिंक. ठीक है, जिंक मेटल लिया है हमने एंड वी हैव टेकन एसिड कौन सा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4. क्लियर? उसके बाद क्या करना है देख लो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स? ऑब्जर्वेशन आपको क्या नजर आती है जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स देखते हो? तो आफ्टर यू रिएक्टेड विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, pass the gas being evolved through the soap solution. When the reaction will take place, obviously there will be some gas which is evolved in this process. उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कौन सी गैस इवॉल्व होती है एंड हाउ विल यू डिटरमाइन कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई है आफ्टर द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. एंड जो भी गैस रिलीज हुई after the reaction, you have to pass that gas through the soap solution that is present in your apparatus only. वो जब मैं आपको apparatus की इमेज दिखाऊंगी then you will understand कि हम किस apparatus की बात कर रहे हैं. And the next question or next observation is they are asking is why are bubbles formed in the soap solution? Second reason that if the gas is being passed, then why the bubbles are being formed because of that gas? And lastly, take a burning candle near a gas filled with bubble. What do you observe? And if the bubble is being released from the soap solution and you bring a burning candle near that bubble, कि एक bubble आपको arise होते हुए दिख रही है soap solution से, and if you take a candle, let's suppose ये bubble है, the bubble is here, and अगर आप उसको candle उसके पास लेके जाओ bubble के पास, then what will happen? Right? तो अब देख लेते हैं बेटा. अपैरेटस समझ लो पहले. अपैरेटस समझ लेते हैं सबसे पहले. सो वी हैव टेकन दिस टेस्ट ट्यूब फर्स्ट थिंग. ऑलराइट, स्टैंड पे हमने इसको क्लैंप के थ्रू कर लिया है, होल्ड कर लिया है. देन वी हैव एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब एज यू कैन सी, एंड ऑन टॉप ऑफ इट वी हैव एडेड जिंक ग्रेन्यूल्स इन इट. ये आपको जिंक के छोटे छोटे पीसेस नजर आ रहे होंगे टेस्ट ट्यूब में. यस, तो ये क्या हो रहा है? अब रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है यहां पे. सो यू कैन सी द गैस रिलीज्ड इज हाइड्रोजन गैस बबल्स.
तो जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेकेंड स्टेप में क्या बोला था उन्होंने हमसे कि whichever gas is being released, you pass it with the soap solution और pass it in the soap solution। तो आप देखो यहां पे एक डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है, इसका काम है टू डिलीवर द गैस। यस, सो दिस डिलीवरी ट्यूब इज डिलीवरिंग द हाइड्रोजन गैस विच इज बीइंग इवॉल्व्ड इन द सोप सोल्यूशन। ये सोप सोल्यूशन आ गया बेटा, ये आपको दिख रहा है टम्बलर में, ग्लास टम्बलर में आपके पास क्या है? दिस इज द सोप सोल्यूशन। एंड देन यू सी कि आपने गैस यहां से पास की, इसके थ्रू आपने पास की है गैस, तो सोप बबल्स बन रहे हैं फिल्ड विद हाइड्रोजन। इन सबके अंदर क्या है बेटा? H2 गैस है, H2 गैस है इन सभी के अंदर, H2 गैस। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, H2 गैस, सभी के अंदर H2 गैस है, सभी बबल्स के अंदर। ऑलराइट, फिर उसके बाद आपको स्टेप था कि बर्निंग कैंडल आप लेके आओ इन बबल्स के पास, तब क्या होगा? सो बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद द पॉप साउंड, तो इट विल बर्न और इट विल, छोटा सा आपको क्रैक साउंड आएगा, क्रैकर जैसे बजते हैं ना, पटाखे बजते हैं जैसे, वैसे साउंड आएगी, लेकिन हल्की सी आएगी, पॉप साउंड के साथ आएगा। इट विल क्रिएट अ पॉप साउंड। अच्छा, ऐसे एक्सपेरिमेंट अगर आपको ना भी डायरेक्ट पूछे जाएं तो क्वेश्चन आपको ऐसा आता है दैट विच गैस बर्न्स विद अ कैंडल विद अ पॉप साउंड, कि कौन सी गैस ऐसी है जो बर्न करती है विद अ पॉप साउंड? दैट आंसर इसका वेरी सिंपल, इट इज अ हाइड्रोजन गैस। Without a doubt, it is a hydrogen gas that burns with a pop sound when you bring a candle near to it. All right? Just a second. यहाँ पे आपको repeat करने हैं this activity with some more acids like HCl, HNO3 and CH3COOH. अभी तो हमने H2SO4 के साथ किया था, dilute H2SO4 के साथ। उसके अलावा बेटा आपको HCl के साथ भी करना है, HNO3 के साथ भी करना है एंड CH3COOH के साथ भी करना है। क्लियर? एंड देन आपको सिमिलर आपने रिजल्ट्स देखने हैं कि क्या आपको वैसा रिजल्ट आ रहा है, क्या वो गैस रिलीज हो रही है, एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द सोप बबल्स। ऑलराइट, सो आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस सेम और डिफरेंट? सभी एसिड्स के साथ आपको सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं या अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये आपने बताना है। क्लियर? तो देख लो, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं बेटा। ऑब्जर्वेशन में हमें क्या नजर आता है? दैट वी सी बबल्स कमिंग आउट विगरसली विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर बेटा आपका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ है, इफ वी हैव टेकन टेस्ट ट्यूब में, अगर आपने अपैरेटस में टेस्ट ट्यूब में अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, तो समझो बेटा कि जो बबल्स हैं वो बहुत विगरसली बाहर आते हैं, बहुत फास्ट। द रिएक्शन इज वेरी फास्ट एंड वेरी विगरस। ऑलराइट, दिस गैस बर्न्स व्हेन वी ब्रिंग द कैंडल टू इट, एंड जो गैस रिलीज हो रही है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, एंड इट बर्न्स वेरी रैपिडली व्हेन यू ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर टू इट। दैट इज वन थिंग। नाउ जिंक ऑल्सो रिएक्ट्स विद वीक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, बट हियर गैस फॉर्मेशन इज स्लो। यहां पे आप देख लो, वीक एसिड हम किसको बोल रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में मैं लिख चुकी थी। नाउ आई एम राइटिंग कि वीक एसिड यहां पे क्या है बेटा? दैट इज CH3COOH। ये वीक एसिड है एंड इट्स नेम इज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, और वो किसमें है बेटा? एसिटिक एसिड किसमें था? हमने क्या देखा था? इट इज इन दी विनेगर। इट इज इन दी विनेगर। गॉट इट? सो ये वीक एसिड है बेटा। तो यहां पे हमने क्या ऑब्जर्व किया है? दैट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड्स द गैसेस व्हिच आर रिलीज्ड आर वेरी विगरस, whereas if the zinc is reacting with the weak acid, although it will react, but जो गैस, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होने का जो रेट है, that will be a little slower as compared to the strong acids. One thing, तो इससे हमें ये पता लगा बेटा एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखी, दैट वीक एसिड्स के साथ हाइड्रोजन गैस कम रिलीज होती है एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ हाइड्रोजन गैस ज्यादा रिलीज होती है। तो अब देख लो बेटा,
zinc reacts with acids and forms its salt and hydrogen gas. समझो क्या बोल रहे हैं इस रिएक्शन में कि जो जिंक है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अपना ही सॉल्ट बनाता है. इट्स सॉल्ट दिख रहा है सबको, इट्स सॉल्ट, अपना सॉल्ट बनाता है. जिंक अपना ही सॉल्ट बनाता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड. ये मैं आपको रिएक्शन में समझाऊंगी. हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स एज द बबल. अपना सॉल्ट बनाने के साथ साथ कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है. एंड व्हेन वी ब्रिंग द फ्लेम टू दिस गैस it burns as hydrogen is highly flammable. जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है and when we bring a burning candle near the bubbles filled with hydrogen, the hydrogen gas burns because it is highly flammable. इसकी प्रॉपर्टी है कि बहुत जल्दी जलने लग जाती है in the presence of fire, in the presence of heat. Are we clear? तो एग्जाम्पल में बेटा वी हैव दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, पता होना चाहिए. तो Zn क्या है बेटा? Zn है जिंक, ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया. एंड इसके रिएक्शन में आपको ये क्या बना है? जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट इज फॉर्म्ड, सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. अब देखो हमने ऊपर बात की थी कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स इट्स सॉल्ट. तो देखो जिंक ही रिएक्ट कर रहा है, जिंक ने ही रिएक्ट किया है HCl के साथ, सॉरी H2SO4 के साथ. एंड अपना सॉल्ट, जिंक भी प्रेजेंट है इसमें, जिंक तो प्रेजेंट है ना बेटा इसके सॉल्ट में. जिंक सल्फेट ये क्या है? ये सॉल्ट है. तो क्योंकि इसमें जिंक ही प्रेजेंट है एज अ मेन मेटल, तो देखो बेटा यहाँ पे जिंक ने अपना सॉल्ट बना लिया एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी क्या है? दैट इट इज हाईली फ्लेमेबल. बहुत जल्दी आग पकड़ती है, हाईली फ्लेमेबल. आप देख लेते हैं आगे बेटा. वीक एसिड डज नॉट डिसोसिएट क्विकली इन द वाटर, सो इट्स रिएक्शन विद जिंक इज स्लोअर एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. इस वर्ड की बात करेंगे बेटा. पहले हम इस वर्ड की बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. कि यहां पे बोल रहे हैं कि क्यों वीक एसिड्स जो हैं वो ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, वेयर एज जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो फटाफट हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. तो उसका रीजन क्या है बेटा? जो वीक एसिड्स हैं वो डिसोसिएट नहीं होते पानी में जल्दी. दे डू नॉट डिसोसिएट वेरी क्विकली इन द वाटर. डिसोसिएट होने का मतलब क्या है? मैं यहां पे बता देती हूं आपको. डिसोसिएट होने का मतलब क्या है? इट मीन्स टू ब्रेक डाउन. इट मीन्स टू ब्रेक डाउन इन वाटर. ठीक है, पानी की बात हो रही है ना बेटा. डिसोसिएशन कहां हो रही है इनकी? पानी में हो रही है. तो इनके कहने का मतलब है कि पानी जब आ जाता है तो इनकी ब्रेकडाउन नहीं होती. किनकी नहीं होती? मतलब होती है बट स्लो होती है वीक एसिड्स की. अब पहले मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ बता देती हूँ. लेट्स सपोज यहां मैंने HCl ले लिया है बेटा. HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है. एंड अगर मैं डिसोसिएशन की बात कर रही हूँ कि डिसोसिएट जल्दी हो जाते हैं, तो डिसोसिएट होने का मतलब अपने आयनिक फॉर्म में आ जाना, आयंस बना देना. दैट इज डिसोसिएशन. टू कन्वर्ट और टू कन्वर्ट द HCl इनटू देयर आयनिक फॉर्म. तो आयनिक फॉर्म कौन सा होगा? HCl में हाइड्रोजन आ जाएगा H पॉजिटिव, ये आ गया H पॉजिटिव, एंड ये आ गया Cl नेगेटिव. ये पॉजिटिव आ गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव लग जाता है, एंड क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग जाता है. ये आपको क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा है इन पे, ये आपको आगे चैप्टर्स में है. बट एक बात जान लो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज है. ये आपको समझ में आएगा जब आपको आगे चैप्टर में समझाया जाएगा. ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई. तो ये डिसोसिएशन फटाफट हो जाती है. तो इसमें देखो बेटा कौन सी गैस क्या निकल रहा है, गैस भी छोड़ो,
हाइड्रोजन बाहर आ रहा है ना, तो हाइड्रोजन जैसे जैसे बाहर आता जाएगा HCl के मॉलिक्यूल से, फटाफट फटाफट H पॉजिटिव आयंस आते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग रिलीज फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स। तो इसी में से बेटा दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, दो हाइड्रोजन मिलके H2 गैस बना लेंगे एंड दे विल रिलीज एज अ गैस। वेयर एज अगर आप वीक एसिड्स की बात करते हो बेटा, अगर आप वीक एसिड्स की बात कर रहे हो यहां पे, अब लेट्स सपोज मैंने यहां पे वीक एसिड्स के बारे में मैं आपको बताती हूं, तो क्या होएगा, व्हाट विल हैपन देन। तो वीक एसिड हमारे पास एसिटिक एसिड है, दैट इज CH3COOH, ठीक है। अब इसका डिसोसिएशन बहुत धीरे धीरे होता है, तो ये डिसोसिएट कैसे होएगा, इट विल बी डिसोसिएटेड एज CH3COO नेगेटिव एंड यहां से हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, अगले मॉलिक्यूल से भी रिलीज होंगे, लेकिन डिसोसिएशन बहुत स्लो है, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते रहेंगे, आते रहेंगे, डिसोसिएट होते रहेंगे एंड बहुत थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन गैस फिर रिलीज होगी। ऑलराइट, सो एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म मेटल सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ये इसका जनरल फॉर्मूला है बेटा, इसको हम जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ आता है या आपकी बुक्स में अगर ऐसा कुछ दिया है तो दिस इज कॉल्ड एज द जनरल फॉर्मूला। ऑलराइट, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। तो जनरल फॉर्मूला क्या बताता है हमें, दैट एसिड प्लस मेटल, एसिड को जब आप मेटल के साथ रिएक्ट करोगे इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। जिंक मेटल है, H2SO4 इज एन एसिड, इसके साथ जो आपस में रिएक्ट करेंगे देन दे विल फॉर्म सॉल्ट, दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन gas is released. Are we clear till here? All right. So yes, this was all about this lecture. I hope you understood it. I hope you understood the activities and basic principles of acids and bases. Obviously, there is more to this chapter, more interesting activities that we are going to do. Till then, keep studying, keep learning, and I'll see you in the next lecture. Thank you.